Hi students, welcome back. Today we will discuss the classical theory of income, output and employment. The level of output and income is determined through two approaches. First is classical approach and second one is Keynesian approach. Today we will discuss the classical approach or classical theory of income, output and employment. Before discussing the theory, I will tell you about the classical economist. Actually, classical economist is not a single economist. It is not a single economist. Rather, they are the combined thoughts of many classical and neoclassical economists. It means classical economists are the combination of classical economists and neoclassical economists. Now I will tell you about the classical and neoclassical economists. Economists like Adam Smith, J.B. Say, Malthus, Ricardo, etc. are considered as classical economists, whereas the economists like J.S. Mill, Marshall, these economists are neoclassical economists. It means the classical economist is the combination of all the classical as well as the neoclassical economists. They combined have given some thoughts or some thinkings which is considered as classical theory of income, output and employment. Now we will discuss the thoughts of classical economists. In this video, I will tell you about the thoughts of classical economists and assumptions. And the equilibrium will be discussed in the next video. So firstly, coming towards the thoughts of classical economists. First thought is that full employment is a normal feature. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है दैट इज ए नॉर्मल फीचर ऑफ एवरी इकोनॉमी. वो क्या कहते थे कि जो लेबर है या जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो फुली एम्प्लॉयड है. दे आर फुली एम्प्लॉयड इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. इट मीन्स क्या है कि जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए एंड दे आर रेडी टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे विल गेट द वर्क. दे कंसीडर फुल एम्प्लॉयमेंट एज द नॉर्मल फीचर. वो कहते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो वो क्या होती है, टेम्परेरी. इट इज कंसिडर्ड एज टेम्परेरी और फॉर अ शॉर्ट रन. दे कंसिडर्ड unemployment as the abnormal feature. So the first thought of classical as well as the neoclassical economist is that full employment is a normal feature. Second thought according to the classical economist is this, that any deviation from full employment is temporary. इसका मीनिंग क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो किस लेवल के लिए होती है, वो शॉर्ट रन के लिए होती है, शॉर्ट रन नेचर की होती है. इट मीन्स इट इज टेम्परेरी वन. तो इकोनॉमी में क्या है, मार्केट फोर्सेस हैं जो अपन ने सेज लॉ में भी डिस्कस की थी. मार्केट फोर्सेस हैं, कौन कौन सी हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, प्राइसेस. ये ऑटोमेटिकली सेल्फ ऑटोमेटिक सिस्टम में इस तरह से मूव करती हैं
कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिमूव हो जाती है और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अगेन रीस्टोर हो जाता है। ये कैसे होती है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। लेट अस सपोज देयर इज अ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या होएगा कि जो सप्लाई है लेबर की वो क्या होएगी, ज्यादा, और डिमांड क्या होएगी, कम। When the supply of labor is more than the demand for the labor, then the wage rate will fall. Wages क्या हो जाएंगी, fall. जब wages fall हो जाएंगी, again demand क्या हो जाएगी producers की, increase. जब demand increase हो जाएगी तो it means क्या है, unemployment क्या हो जाएगी, remove. So it means क्या है, इकोनॉमी में सेल्फ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिमूव हो गई है और अगेन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज रीस्टोर्ड। दीज आर द टू थॉट्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अदर थॉट्स। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की क्या थॉट थी, इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कंसीडर करते थे कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो कहां पर आती है, जहां पर इक्विलिब्रियम होता है। तो इट मींस क्या है, वो इक्विलिब्रियम किसको कंसीडर करते थे, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस ओनली एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इट मींस जो है अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तो इक्विलिब्रियम भी क्या है, नहीं पॉसिबल होएगा। इट मींस इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस लेवल। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं है तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम भी नहीं होएगा। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का थॉट था। नेक्स्ट थॉट क्या था, उनके अकॉर्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या था। फुल एम्प्लॉयमेंट उनके अकॉर्डिंगली क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन दी 100% एम्प्लॉयमेंट। ये रॉन्ग था। वो क्या कहते थे, वी ऑल दोज persons who are ready to work at existing wage rate gets the work। इसका मीनिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंगली फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या था कि जो पर्सन्स काम करने के लिए तैयार हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर और उनको काम जब मिल रहा है, इट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो उनके अकॉर्डिंगली क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट मींस एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी मतलब क्या है, कोई विलिंगली अपने आप जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इसका कई बार बेटा शॉर्ट नोट आ जाता है कि 5 मार्क्स का, कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है और वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है। तो इसलिए मैं एक बीच ही में करवा देती हूँ क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या है, फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी क्या होता है मीनिंग, वॉलंटरी का मीनिंग होता है विलिंगली अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैंने अभी एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या बताया है, all those persons who are ready to work at the existing wage rate gets the work। it means voluntary unemployment क्या होगी, willingly unemployment। लोगों को काम मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। it means क्या होगा, 2 points are there। फर्स्ट क्या आएगा, वर्कर्स आर फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। पहली कंडीशन क्या होगी, वर्कर्स जो है फिजिकली प्लस मेंटली फिट हैं, बट दे आर नॉट विलिंग, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। काम उनको मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए रेडी नहीं है। दे आर नॉट
willing to work at the existing wage rate. This type of unemployment is known as voluntary unemployment. This is the first type of unemployment. Second type is frictional unemployment. Frictional unemployment. कई बार क्या होता है इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी जैसे आजकल चेंज हो रही है, टेक्निक जो है वो चेंज होगी। टेक्निक चेंज होने के कारण क्या है, जो वर्कर्स हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड। शॉर्ट पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट पोजेस द रिक्वायर्ड स्किल्स। उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होते जो न्यू टेक्नोलॉजी डिमांड कर रही है। या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, लाइक जो मशीनरी है उसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। तो शॉर्ट पीरियड के लिए जो वर्कर्स है अगेन क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। या वियर एंड टियर हो गया मशीनरी का। या कई बार क्या है, जैसे आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इन कारणों के कारण क्या है, ये सारे रीजंस के कारण जो पर्सन्स हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, कैजुअल मीन्स क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Seasonal unemployment means when the unemployment occurs because of the seasonal nature of some industries. कुछ इंडस्ट्रीज सीजनल नेचर की होती हैं, जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लेते हैं, आइस फैक्ट्रीज हैं। आइस फैक्ट्रीज जो हैं वो क्लोज डाउन हो जाती हैं, कब, विंटर सीजन में। तो जो उसके वर्कर्स हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड। दिस इज नोन एज कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आती है फोर्थ टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, कई बार इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, जिसके कारण, स्ट्रक्चरल चेंज आने के कारण कुछ इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले रहे हैं, पहले क्या था, नॉर्मल रिक्शास चलती थी, ठीक है। आजकल ये रिक्शास जो हैं इनका ट्रेंड डिक्लाइन हो रहा है। इसकी रिप्लेसमेंट किसने कर ली है, जैसे ई रिक्शास आ गई हैं, ठीक है, या ऑटोज आ गए हैं, या कैब्स आ गई हैं। तो इट मीन्स क्या है, जो वर्कर्स नॉर्मल रिक्शा चलाते थे वो क्या हो गए हैं, अनएम्प्लॉयड। वाई अनएम्प्लॉयड, क्योंकि उनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। ये फैसिलिटीज अगर हैं तो इनको चलाने के लिए उनके अंदर स्किल्स नहीं है। तो स्ट्रक्चरल चेंज आने के कारण जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, लास्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी क्या होगी, वर्कर्स तो रेडी हैं काम करने के लिए, लेकिन मार्केट उनको काम नहीं देगी। अब ये अपोजिट होएगी टू वॉलंटरी। इट मीन्स मार्केट इज नॉट गिविंग द वर्क, बट वर्कर्स आर रेडी। वर्कर्स आर रेडी to do the work. This type of unemployment is known as involuntary unemployment. So this topic can also be covered under the meaning of full employment. Now moving towards the thoughts. Next, fifth thought is two pillars of classical. बेटा टू मेजर पिलर्स क्या हैं क्लासिकल थ्योरी के। फर्स्ट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट। ये हम फुल फ्लैज चैप्टर जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार ब्रीफ अप कर देती हूँ यहाँ पे। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या है, सेज लॉ क्या कहता है
कि सप्लाई अपनी डिमांड अपने आप क्रिएट कर लेती है, इसलिए सप्लाई ऑलवेज किसकी इक्वल होती है, डिमांड की. इट मीन्स वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड ऑटोमेटिकली. इट मीन्स प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन and there is no overproduction in the economy and no unemployment in the economy. It is known as Say's law of market. सेकेंड पिलर इसका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. अब अपने अभी डिस्कस किया था फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है, मार्केट फोर्सेस में. क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो वो उसको कौन टैकल करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मार्केट फोर्सेस. वो कौन कौन सी हैं, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्राइसेस. ये इस तरह से मूव करती है कि ऑटोमेटिकली फिर से क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम. ये ऑटोमेटिकली सेल्फ ऑटोमेटेड मैकेनिज्म के थ्रू मूव करती है, जिसके थ्रू अगेन जो इकोनॉमी है उसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल रीस्टोर हो जाता है. लास्ट थॉट क्या थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्स इन द लेजिस फेयर पॉलिसी. लेजिस फेयर इकोनॉमी में वो बिलीव करते थे. लेजिस फेयर इकोनॉमी क्या होती है, इन विच देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती. किसमें नहीं करती, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करती. गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है टू मेंटेन law and order in the economy. Law and order in the economy. Government does not interfere in any business matters. Rather, classical believes that there is a policy of no government intervention. So these are the various thoughts of classical theory of income, output and employment. Now we will discuss the assumptions of क्लासिकल थ्योरी. ये जो एजम्पशंस हैं ये इन्हीं थॉट्स के ऊपर बेस्ड हैं और सेज लॉ में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं. ये एजम्पशंस बिल्कुल उनके साथ ही मिलती जुलती हैं. तो फर्स्ट क्या है एजम्पशन, फुल एम्प्लॉयमेंट. जो शुरू से इसी की बात हो रही है. इट मीन्स क्या है, जो क्लासिकल्स हैं वो किस में बिलीव करते हैं, दे बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द नॉर्मल फीचर ऑफ द इकोनॉमी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल where equilibrium takes place. Second assumption उनकी क्या है, closed economy. It means जो है closed economy means क्या होएगा, ट्रेड जो है वो विद इन द कंट्री ही होएगा. जो है एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड जो है वो दैट इज नॉट पॉसिबल. थर्ड है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. ये बेटा अपने पॉइंट अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होएगी. किसमें नहीं होएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. गवर्नमेंट का सिर्फ काम क्या होगा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट फिफ्थ असम्पशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन होता है वो कंपटीशन जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं. तो जो क्लासिकल्स हैं वो किस में बिलीव करते थे कि जो परफेक्ट कंपटीशन है दोनों मार्केट्स में होएगा, प्रोडक्ट मार्केट में भी और लेबर मार्केट में. Next, fifth assumption is money as a medium of exchange. क्लासिकल्स क्या बिलीव करते थे कि मनी का रोल क्या है, ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता. मनी सिर्फ क्या करता है, मनी का फंक्शन क्या है, टू फैसिलिटेट द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग करना. नेक्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंगली क्या थी, स्टैटिक कंडीशंस. क्लासिकल्स क्या बिलीव करते थे कि इकोनॉमी में स्टैटिक कंडीशन होती है, मींस देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस टेक्नोलॉजी, देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट, देयर इज नो चेंज इन द हैबिट्स, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस. नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट, क्लासिकल क्या बिलीव करते थे, भी सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट. इट मीन्स ऑल द सेविंग्स आर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी. तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कौन मेंटेन करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट assumption is economy is
फ्लेक्सिबल, ये आपने अभी डिस्कस किया डिटेल में पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इकोनॉमी में, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मार्केट फोर्सेस लेके आती है, कौन कौन सी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्राइसेस। नेक्स्ट अजम्पशन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लासिकल किस में बिलीव करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है वो ऑपरेट होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स आप लेबर के लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिमिनिश, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। नेक्स्ट लास्ट अजम्पशन उनके अकॉर्डिंगली क्या थी, लॉन्ग रन थ्योरी। क्लासिकल किस में बिलीव करते थे कि जो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ये किस में पॉसिबल है, लॉन्ग रन में। सो देयर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ लॉन्ग रन। थैंक यू।